Today I am going to start a new chapter, chapter number 4, an officer and a gentleman. The story is about an Indian Army officer. Okay, the name of the that person is Colonel Vasant Venugopal. Right. So this is an inspiring story of an Indian Army officer. The name of the story is Officer and a Gentleman, about the Colonel Vasant Venugopal, who was born on 25th March 1987. Was an Indian Army officer. Father name was N.K. Venugopal and the mother was Prafula. Okay, he was the younger two brother. He was a true soldier who laid down his life for our country. ठीक है. The motto of this brave soldier, I go where my men go. उनका मोटिव क्या था? मैं वहां जाऊंगा जहां मेरे आदमी जाएंगे. Colonel Vasant was a protector and a creator and the valued life in every form. Typically, he was hit by a bullet and he passed away at the hospital. Okay, Colonel Vasant was a true soldier, was dedicated to the country and his force. So this was about the Colonel Vasant Venugopal, right? So इससे हम बेटा 2 parts में पढ़ेंगे. So let's start reading of part 1. Okay. So let's start reading of this chapter on the page number 46. An officer and a gentleman. Read on to the know about the National Bravery Award. The National Bravery Awards are a set of awards that are given to children usually below the 16 years. जो नेशनल ब्रेवी अवार्ड है ये उन बच्चों को दिया जाता है जो 16 ईयर से कम के होते हैं फॉर द मॉनिटर्स एक्ट ऑफ द ब्रेवी अगेंस्ट ऑल द ओड्स. क्यों दिया जाता है कि मतलब उनके एक सभी बाधाओं के खिलाफ बहादुरी और सराहनीय कार्य के लिए. राइट. These category awards are presented by the Prime Minister of India. ये अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे. गणतंत्र दिवस पर हैज़ अ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. इसकी क्या एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास है. On 2nd October 1957, the Prime Minister of our country, Jawaharlal Nehru, was watching a show at Ramlila ground, Delhi. Suddenly, a short circuit set decorated tent on the fire. मतलब क्या 2 अक्टूबर 1957 में द प्राइम मिनिस्टर वॉज जो प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के थे जवाहरलाल नेहरू वॉज वॉचिंग द शो एट द रामलीला ग्राउंड. रामलीला ग्राउंड में एक शो देख रहे थे जो दिल्ली में है रामलीला ग्राउंड. सडनली अ शॉर्ट सर्किट सेट डेकोरेट टेंट ऑन द फायर. एकदम से क्या आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से. अब 14 years बॉय Harishchandra was serving as a scout on the ground. He swiftly cut through the tent using the knife, the saving of the life of the people who were trapped inside it. This incident led Jawaharlal Nehru to propose the idea of honoring brave children across the country. Thus, the National Bravery Awards was established. तो मतलब ये किस तरह से मतलब ये देने का उनका मन किया. क्या उन्होंने देखा ऐसा? तो उन्होंने देखा कि मतलब एक बच्चे ने शॉर्ट सर्किट से मतलब किस तरह से जो शॉर्ट सर्किट नाइफ का यूज़ करके उस टेंट को वहाँ से अलग किया, काटा और काफ़ी लोगों की उन्होंने जान बचाई. तो उस समय जब उन्होंने उस 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे को देखा तो उन्होंने एक नेशनल ब्रेवी अवार्ड देने की स्थापना की कि मतलब अब मुझे उन्हें ये लगा कि मतलब 16 ईयर्स से कम बच्चे को भी अवार्ड दे जाए जिसका नाम दिया गया नेशनल ब्रेवी अवार्ड. राइट. रीड more about the awarded of the National Bravery Awards 2018 and make a note of the children who have been honored for
their courage. What are the qualities or to make them courage discuss in the class. तो क्या है कि मतलब राष्ट्रीय वीरत्व पुरस्कार जो था 2018 के पुरस्कार विजेताओं के बारे में है। उन 2 बच्चों के बारे में बताएं जिन्हें उन्हें साहस के लिए सम्मिलित किया गया है। ऐसे कौन से गुण हैं जो उन्हें साहसी बनाते हैं, मतलब अपनी क्लास में डिस्कस करना है। लेट्स रीड अबाउट द लाइफ ऑफ द हीरोइक इंडियन आर्मी ऑफिसर हु लेट डाउन हिज लाइफ फॉर आवर कंट्री। तो ये जो स्टोरी है अब हमें पढ़नी है किसके बारे में, उनकी लाइफ एक आर्मी ऑफिसर के बारे में, हु लेट डाउन हिज लाइफ फॉर आवर कंट्री। कर्नल वसंत वेणुगोपाल was born on 25th March 1967 to Prafula at N.K. Venugopal in Bengaluru in India. I have already told you what was the name of the mother. The mother name is Prafula and the father name was N.K. Venugopal. So उनका जो जन्म हुआ कब हुआ 25th March 1967. He was the young of 2 brothers. वो अपने 2 भाइयों में छोटे थे. His father work required the family to travel throughout the Karnataka. Thus the family moved to Udupi, Shimoga and Bangalore. तो जो उनके फादर थे वो क्या करते थे, मतलब उन्हें अपने मतलब काम वगैरह के उससे कहाँ मतलब बाहर जाना पड़ता था। तो मतलब उनके काम की वजह से उनकी पूरी फैमिली को कहाँ कर्नाटक की यात्रा करनी पड़ी। थर्स द फैमिली मूव टू, तो उनकी फैमिली कहाँ गई उनकी फैमिली, सो इस प्रकार उनकी फैमिली कहाँ उडुपी, शिमोगा एंड बेंगलुरु चले गए। Colonel Vasant's school notebook were always filled with the detail of trying of the battle tank and uniformed soldier. He loved reading war story and was the fascinated with मीन्स उनकी जो नोटबुक थी ना स्कूल की वो पूरी किनकी ड्राइंग से भरी रहती थी, बैटल टैंक एंड द, मतलब उनकी जो पूरी नोटबुक थी वो बिल्कुल कैसे हमेशा मतलब जो युद्ध टैंक थे और जो वर्दीधारी सैनिक थे, मतलब पूरी नोटबुक उनकी उससे उनकी ड्राइंग से भरी रहती थी। ही लव टू रीडिंग वार स्टूडेंट को क्या जो लड़ाई जो युद्ध वगैरह की स्टोरीज थी वो पढ़ने का बहुत शौक था। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द पेज नंबर 47. Armand Tang and the weaponry research was his reverence for the uniform that even the child never failed to salute the police or guard on duty. अब देखिए इसमें क्या कहते हैं कि मतलब अपनी जो यूनिफॉर्म के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी कि एक बच्चे के रूप में वह मतलब कभी भी एक पुलिसकर्मी की जो ड्यूटी थी उसके कभी मतलब सल्यूट करना ने विफल नहीं हुए। इन कॉलेज ही ज्वाइंड द नेशनल कैडेट कॉर्प एंड पार्टिसिपेंट इन द इंडो कनाडा वर्ल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम इन 1986 एंड 1987। और उन्होंने क्या जब वो कॉलेज में थे ही व्हेन ही जॉइंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एंड द पार्टिसिपेंट इन द इंडो कनाडा वर्ल्ड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, इन 1986. ओके, कॉल वसंत जॉइंड द इंडियन आर्मी मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून। और जो कॉल वसंत थे उन्होंने ज्वाइन किया था कि हम इंडियन आर्मी एकेडमी इन देहरादून 1988. On 10th June 1989 he was commissioned into the Maratha
light infantry. In the military career spanning the 18 year, he served in the Pathankot, Sikkim, Gandhinagar, Ranchi, Bengaluru, and the various sector of Jammu Kashmir. तो मतलब उन्होंने क्या कर्नल वसंत देव 1988 में देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में शामिल हुए और 10 जून 1989 में उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन दिया गया और जब 18 ईयर्स के थे, 18 साल के थे कि अवधि में एक सैन्य करियर में उन्होंने पठानकोट, सिक्किम और गांधीनगर, रांची, बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में क्या की, सेवा की थी. राइट. I go where my men go was the motto of this brave officer. उनका मतलब क्या मोटिव था कि मतलब मैं जहाँ अपने आदमी जाते थे, मतलब जहाँ मेरे आदमी जाएंगे वहीं मैं होऊंगा. ठीक है. तो वॉज द मोटो ऑफ दिस, मोटो यानी मोटिव था उनका. वहाँ जाना इस मतलब बहादुर अधिकारी का एक आदर्श वाक्य था. ठीक है. उनके जो वर्ड्स थे वो ये थे, ही ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड द वुड बी with his troops even in the face of the great danger. Yet this daring officer was at heart a man of the peace who enjoyed the simple things of life. He craved of the most of the modern activity of the everyone take for the granted, ordering the pizza, eating hot chocolate foods and drinking filter coffee. तो कहते हैं कि मतलब फिर भी ये जो साहसी अधिकारी थे, एक मतलब दिल की शांति के वाले इंसान थे. इन्होंने कभी जीवन में मतलब जीवन की सरल चीज़ों का आनंद लिया. वह उन गतिविधियों के सबसे संसारिक के लिए तरस किया जो हर किसी को, जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए लेता था, हॉट चॉकलेट खाना मतलब और फिल्टरिंग कॉफ़ी पीना, मतलब उनको ये सब चीज़ें के लिए मतलब तरस गए थे. Cole Vasant was the protector and the creator of and the valued life in every form. This was evident from the incident that occurred the mountain of the Sikkim in the winter of 1983. During a routine patrol, the Vasant and his team spotted some movement in the undergrowth below the cliff. तो कहते हैं जो कर्नल वसंत थे एक रक्षक और निर्माता थे और हर रूप में उन्होंने जीवन को मतलब हर रूप में वो जीवन का महत्व देते थे. यह 1993 की में मतलब जो विंटर्स में सिक्किम के पहाड़ों में हुई एक घटना से स्पष्ट था. एक नियमित रूप से मतलब गश्त के दौरान वसंत और उनकी टीम ने एक चट्टान के नीचे अंडरग्राउंड में कुछ एक आंदोलन देखा था. ठीक है. उन्होंने मतलब एक क्या आंदोलन देखा था. दे मेड दे वे द केयरफुल of the edge and the cliff, only they discovered that it was the deer caught hunter snare knot on the soldier was ready to go down the steep slope to rescue the deer, but the Vasant could not just walk away and neither would he force his men to do what he himself was not prepared to do. So he made his way down the precarious slope, risking his life to get the animal free. It was the moment of the great satisfaction to him. तो उन्होंने मतलब क्या देखा इसमें
तो उन्होंने मतलब क्या, जो चट्टान थे ना, चट्टान के वहाँ से उन्होंने एक रास्ता बनाया, केवल क्या देखने के लिए कि मतलब एक चट्टान के किनारे से एक सावधानी से एक अपना रास्ता बनाया गया, केवल ये पता लगाने के लिए कि एक शिकारी हिरण के जाल में पकड़ा गया था। हिरणों को बचाने के लिए कोई सैनिक ढलान का तैयार नहीं था, लेकिन वसंत ना तो चल सका और ना ही वह अपने आदमियों को वह करने के लिए मजबूर करेगा जो वह खुद करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो अपने जो उसके जो सेक्रेटरीज थे, उनके जो आदमी थे, उसको भी करने के लिए तैयार नहीं होते थे, बिकॉज ही वॉज काइंड हार्टेड पर्सन। तो उन्होंने एक अनिश्चित ढलान के नीचे से अपना रास्ता बनाया, जो मतलब एक एनिमल फ्री था, पशु को मुक्त करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया था। यह उनके लिए संतोष का महान एक क्षण। सो दिस वॉज द पार्ट फर्स्ट of this chapter. Now tomorrow we will read the part 2 of this chapter.